I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Once again, welcome back to my channel Brain Gain with another lecture, lecture number 31, Cauchy differential equation. So this is the last topic we are going to deal with. There may be any subtopic, but the main focus will be on the partial differential equations. P dot D dot E, partial differential equations. So there we will deal with two types of partial differential equation in detail, that is heat and wave equation. These partial differential equations are maybe linear or non-linear. Whatever I will say, you have to write that. These partial differential equations are maybe linear or non-linear. Analogous to linear ordinary differential equation, the dependent variable and its partial derivatives in a linear partial differential equations are only to the first power. ठीक है, analogous to linear ordinary differential equation, the dependent variable and its partial derivatives in a linear partial differential equation are only to be into the first power. Linear में वो first power होते हैं. You will see now again. After that, this was just the intro little. Now give the heading of linear partial differential equation. If we let u denote the dependent variable, u is dependent variable, and let x and y denote the independent variables, आपके पास let u denote the dependent variable, let x and y denote the independent variables, then the general form of a linear second order differential equation is given by a partial square u. A is any constant, partial x square, plus c partial square u over partial y square, plus b partial square u over partial x partial y, plus d partial u by partial x, plus e partial u by partial y. ओके, अब ना u डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लिया जाता है, पर यहाँ हमारे पास एक इंडिपेंडेंट नहीं है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो ऐसी सूरत में हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसे पार्शियल डेरिवेटिव्स कहा जाता है कि लेट u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y. तो आप जब x के रिस्पेक्टिव उसका डेरिवेटिव लोगे तो y को आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे. जब y के तरफ पे डेरिवेटिव लोगे तो x को कांस्टेंट करोगे. और यहाँ पर आप दो दफ़ा तो डेरिवेटिव ले रहे हो, पर एक दफ़ा x के रिस्पेक्ट से, एक दफ़ा y के रिस्पेक्ट से, और इधर आप एक एक दफ़ा ही डेरिवेटिव ले रहे हो. एंड फर्दर a b c d एंड e आर, यहाँ पे e लिख लें, आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स. और to complete this there can be any other function f is also constant, is equal to g. G can be any constant or variable.
A, B, C to G are the functions of x and y. They can be, हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील किया था, हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट भी और वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी डील किया था. तो ये A है या C है या B है या D है या E है, ये या F है या आपके पास G है. यहाँ पर ये देखें आपका जो U है, दे कैन बी कांस्टेंट बट ज़्यादा जो चांसेस हैं ये वेरिएबल होने के हैं, क्योंकि u ऑफ एक्स वाई जब आप डील करेंगे और u का विद रिस्पेक्ट टू आप x डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल u बाय पार्शियल x, तो देयर इज सम y that will be coming in a, so they can be a variable coefficients too. Are functions of x and y when g of x, ये मैंने कहा था कि जब आपने पिछली डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी तो इज इक्वल टू के इस तरह जीरो हो तो वो होमोजीनियस और ना हो तो नॉन होमोजीनियस. हमने पहले कह दिया ए बी सी डी ई एफ जी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई. अब हम कह देते हैं जी ऑफ एक्स वाई अगर ये जीरो के बराबर है तो आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, और अगर अदरवाइज नॉन होमोजीनियस. अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं होमोजीनियस की. पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ये आपकी होमोजीनियस है. और ये आपका पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर और माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स वाई. दिस इज नॉन होमोजीनियस. अब आप हेडिंग देंगे क्लासिकल इक्वेशंस. Whatever I will say, you have to write that. We shall concern principally with method of separation of variables to find product solutions of the following classical equations of the mathematical physics, where k is greater than 0. What is k? We will see it. अब जिस तरह हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकाले थे, इस तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते वक्त हम एक मेथड है सेपरेशन ऑफ, दे कैन बी एन अदर मेथड बट आवर फोकस इज ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाले मेथड से इनका इक्वेशन निकालेंगे. तो क्लासिकल इक्वेशन में मैं कुछ इक्वेशंस लिखूंगा, आप उसको देखिए. k इंटू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर is equal to partial square you will just write partial u by partial t. एक दफा लिख रहे हैं फिर मैं बताता हूँ इक्वेशंस किसकी हैं. you are going to write three equations. a square partial square u over partial x square. अब यहाँ पे आपके पास u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और x और t इंडिपेंडेंट है. a square partial square u over partial square is equal to partial square u by partial t square. और एक इक्वेशन आपके पास है partial square u over partial x square plus partial square u over partial y square is equal to 0. ठीक है. यहाँ पर अब ये इधर x और t थे इंडिपेंडेंट और यहाँ पे x और y है इंडिपेंडेंट. यहाँ के बाद तीन इक्वेशंस. इसमें आप लिख लें कि जो k है ना, ये पहली इक्वेशन का तो लिख लें k इज ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन 0 लिख लें. अच्छा, ये इक्वेशन आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये तीनों इक्वेशंस किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं. पहली इक्वेशन जो है ये वन डायमेंशनल हीट
इक्वेशन है और ये है आपकी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और ये है आपकी टू डायमेंशनल फॉर्म ऑफ लैप्लास इक्वेशन। हमने इसको डील करेंगे आगे इन डिटेल, आप देखेंगे। इन 1 and 2 इक्वेशन one dimensional refers to the fact that x denotes a spatial variable whereas t represents time। ठीक है, वन डायमेंशनल में है आपके पास के ये भी वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है। t इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम और x जो है वो कोई कोऑर्डिनेट है। ये टू डायमेंशनल है कि x भी कोई कोऑर्डिनेट है और y भी कोई कोऑर्डिनेट है। और इक्वेशन नंबर 3 में टू डायमेंशनल मीन्स दैट एक्स एंड वाई आर बोथ स्पेशल वेरिएबल्स, जो कि मैं आपको बता दी। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किस तरह है। In this method, we seek a particular solution of the form of a product of the function of x and a function of y। हम सबसे पहले हमारा जो फंक्शन होता है u होता है, जिसका हम डेरिवेटिव लेके चल रहे होते हैं। हम सपोज कर लेते हैं u जो है डिपेंडेंट फंक्शन है किसके ऊपर, x और y पे। आपका x और t पे भी हो सकता है, सो यू हैव टू डील इन दैट केस। तो हम सपोज कर लेते हैं इन दिस मेथड वी सीक अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन x एंड अ फंक्शन ऑफ y। हम एक सोल्यूशन लेट कर लेते हैं x और प्रोडक्ट होता है वो x और y का होगा, यानी कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। दैट u ऑफ x y इज इक्वल टू कैपिटल X ऑफ स्मॉल x, ये चीज, और कैपिटल Y ऑफ स्मॉल y। ठीक है, विद दिस assumption it is sometimes possible to reduce a linear partial differential equation into two ordinary differential equations। So we note that अगर अब मैं इस चीज का पार्शियल u बाय पार्शियल x लूं तो ये आपके पास आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा, y को एज इट इज ट्रीट करेंगे। अगर मैं पार्शियल u बाय पार्शियल y लूंगा तो x एज इट इज होगा और y का डेरिवेटिव होगा। अगर मैं पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर लूंगा, यानी कि इसका दोबारा, इस वाली चीज का दोबारा x का डेरिवेटिव, तो x का डबल डेरिवेटिव होगा और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और अगर इसका मैं पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर, यानी कि इस वाली चीज का दोबारा डेरिवेटिव लूंगा, अगेन x इज कांस्टेंट एंड वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y, it is y double derivative। Now we are going to do a little example related to this। Example 1 related to separation of variables, find the product solutions of the equation है partial square u over partial x square is equal to 4 partial u by partial y। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाले मेथड से करना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड क्या था कि हम u ऑफ एक्स वाई को कैपिटल X ऑफ x और कैपिटल Y ऑफ y लेट करते हैं, और जिस तरह हम उधर एक सोल्यूशन लेट करते थे आप इधर भी एक सोल्यूशन लेट कर रहे हैं। हमारे अननोन्स क्या होंगे, कैपिटल X और कैपिटल Y हमें फाइंड करने। अगर मैं इसी चीज़ का सेकंड 2 टाइम्स डेरिवेटिव विद x लूँगा तो x डबल डैश विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 4, और इसका एक दफ़ा x और ये y के एक दफ़ा y के साथ डेरिवेटिव, x कांस्टेंट ट्रीट होगा।
ठीक है, तो यह आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको बोथ साइड्स को ना 4xy से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4xy। जब मैं इधर डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, y y से कैंसिल हो जाएगा, इधर 4x कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा आपके पास। हम इस चीज को एक कांस्टेंट के बराबर तय कर लेते हैं, लैम्डा x डबल डैश। अगर हम अपने लिए इजीनेस क्रिएट करना चाहें ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, तो हम इसे लैम्डा इज अ कांस्टेंट पर हम माइनस लैम्डा के बराबर रखते हैं। ठीक है, x डबल डैश ओवर 4x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये केस अलहदा। y डैश ओवर y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये केस अलहदा। ये आपके पास हो जाएगा x डबल डैश, ये इधर जाएगा तो ये -4 लैम्डा x, और ये इधर आके +4 लैम्डा x इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये इधर y डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। अब अगर पीछे जाएं, मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हेडिंग के नीचे आपसे बात की थी। इन दिस मेथड वी सीक अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन x and a function of y. With this assumption, it is sometimes possible to reduce the partial differential equation to two ordinary differential equations. हमने इस partial differential equations को two ordinary differential equations के अंदर reduce किया। ये बात वहाँ लिखी हुई थी, उसका मतलब यहाँ पर। अच्छा, now we consider three cases for lambda. आप lambda के लिए 3 cases देखेंगे। There can be lambda is equal to 0. There can be lambda is equal to minus alpha square, which is less than 0. And there can be lambda is equal to alpha square, which is greater than 0. And what about alpha? Alpha is greater than always 0. या lambda 0 होगा, या लैम्डा लेस देन 0 होगा, या लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा। पर जो वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 है, हमने उसे माइनस अल्फा स्क्वायर कह लिया। जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हमने उसे सिर्फ अल्फा स्क्वायर कह लिया, बिकॉज अल्फा इज ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू है। तो जब उसके साथ माइनस लग जाएगा तो लेस देन 0 होगा, जब वो ऐसे ही होगी तो वो ग्रेटर देन 0 होगी। इसका क्या मकसद है, ये आपकी सिर्फ सोल्यूशन निकालने की आसानी के लिए है। वी आर गोइंग टू डील with first case, that is lambda is equal to 0 first, then we deal with other cases. अच्छा, पहली क्वेश्चन क्या थी, x डबल डैश प्लस 4 लैम्डा x इज इक्वल टू 0। मैं उसके अंदर x डबल डैश, लैम्डा तो 0 हो गया तो वो वाली साइड पूरी 0 इज इक्वल टू 0 कर दूंगा बस। और दूसरी चीज जो थी, दूसरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी थी, y डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू, लैम्डा 0 है तो y डैश प्लस लैम्डा y था तो वो 0, तो y डैश भी इज इक्वल टू 0। बाय डूइंग इंटीग्रेशन, आप एक दफा इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरी मरतबा इंटीग्रेशन करेंगे, या हम ऐसे करते हैं, हम इंटीग्रेशन नहीं करते। आप x इज इक्वल टू e की पावर mx सेलेक्ट कर लें, और x डबल डैश इज इक्वल टू m स्क्वायर e की पावर mx सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आप इसको इधर पुट करेंगे तो e की पावर mx इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ये चीज़ जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, तो मीन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, और यानी कि m1 भी इज इक्वल टू ज़ीरो, दो रूट्स है ना हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो m2 भी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू c1, क्योंकि हम किसके द्वारा लिखते हैं, e की पावर mx हमने सोल्यूशन लेट किया, तो e की पावर mx, m पहला ज़ीरो, m ज़ीरो होगा, ये इस तरह से होगा, और रूट रिपीट कर है, तो यानी कि m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं इसे सिर्फ यहाँ m ही लिख देता हूँ, और जब दोबारा रूट रिपीट होता है तो हम साथ एक x मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो और साथ ये c कॉन्स्टेंट और ये c2 कॉन्स्टेंट, सो x इज इक्वल e की पावर mx, ये 0x, तो ये c1 से रह जाएगा, e की पावर 0 1 होगा, और c2 और x, और ये फिर e की पावर 0 1 हो जाएगा। सो दिस वाज योर फर्स्ट केस सॉल्यूशन कि x ये है c1 प्लस c2x। अब दूसरी तरफ y की तरफ चलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अब y की तरफ बात करते हुए जाएं, तो अगर y इज इक्वल टू y डैश m इज इक्वल टू y का हम सोल्यूशन लेट करेंगे e की पावर my, और पहला डेरिवेटिव होगा m इंटू ई की पावर my, ठीक है। और ये अगर जीरो के बराबर होगा, y डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, सो m इंटू ई की पावर my इज इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ जीरो के बराबर नहीं हो सकती, तो m इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारा सोल्यूशन था y इज इक्वल टू ई की पावर my, और साथ एक कांस्टेंट होगा c1, जिस तरह हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लेट करते थे। तो c1 ई की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि m 0 है, तो ये y इज इक्वल टू c1 आ जाएगा, ठीक है। हमने x भी निकाल लिया इस केस के लिए, और y भी निकाल लिया इस केस के लिए। अच्छा, हमारा क्या था, u इज इक्वल टू एक्स वाई, x क्या निकला, c1 प्लस c2x, राइट, और उसका कांस्टेंट था उसे c3 कह लें जस्ट, ठीक है। आप जब इस तरह करेंगे तो ये c1 c3 प्लस c2 c3 इंटू एक्स, और यहाँ पे आप ऐसे कर ले, c1 c3 को नया कांस्टेंट का नाम दे दें a1, और इसको b1 का नाम दे दें, और ये x कह दें, ठीक है। c1 c3 इज इक्वल टू a1, c2 c3 इज इक्वल टू b1। अच्छा, पहले केस में जब लैम्डा 0 है तो आपका u a1 प्लस b1 ऑफ x है, राइट। इन a1 क्या है, कोई कांस्टेंट है, और b1 भी एक कांस्टेंट है। अब केस नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। हमारी इक्वेशन क्या थी, पहले x के लिए हम काम करेंगे, x डबल डेरिवेटिव प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये x और ये इज इक्वल टू 0, राइट। तो x के लिए x डबल डेरिवेटिव की जिस तरह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेट करते हैं, वो होगा m स्क्वायर ई की पावर mx माइनस 4 अल्फा स्क्वायर ई की पावर mx इज इक्वल टू 0। ई की पावर mx को कॉमन लें, m स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ई की पावर mx जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो ये चीज़ 0 के बराबर होगी, और ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर, m इज इक्वल टू आपका जो भी ये आएगा इस तरह से प्लस माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, सॉरी 4 अल्फा स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2
अल्फा। ठीक है, एक आपका रूट हो गया +2 अल्फा, एक हो गया -2 अल्फा। और आपके रूट रिपीट कर रहे हैं, तो ये आप इक्वेशन इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू ई की पावर mx ई की पावर 2 अल्फा x और प्लस ई की पावर, ये c1 होगा, यहाँ एक कॉन्स्टेंट, यहाँ c2 होगा, -2 अल्फा x। अच्छा, अगर इस चीज़ को मैं एक नए रूप में लिखूं, आप मेरा यकीन कर लीजिए, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इसका मिल जाएगा अभी, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप x को ऐसे भी लिख सकते हैं। हम पहले c1 और c2 और c3 तक डील कर चुके, तो मैं इसे c4 और इसे c5 का नाम दे देता हूँ। हम इस सोल्यूशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, c4 cos हाइपरबॉलिक 2ax प्लस c5 साइन हाइपरबॉलिक 2ax। आप देख लीजिएगा, ये चीज़ जो है ये इसी के बराबर है। ठीक है, अब हम y का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। y क्या था आपके पास, y डैश प्लस लैम्डा, लैम्डा क्या है, -α² इंटू y इज इक्वल टू 0। y को आप e की पावर m इंटू ई की पावर m बाय माइनस अल्फा स्केयर ई की पावर m बाय इज इक्वल टू 0, ई की पावर m बाय कॉमन, m माइनस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू अल्फा स्केयर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इस चीज़ को 0 के बराबर सपोज करेंगे और ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो m इज इक्वल टू अल्फा स्केयर आपका एक ही रूट बनेगा, राइट, के y इज इक्वल टू ई की पावर m y, ई की पावर अल्फा स्केयर y, और साथ एक कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे आप कांस्टेंट c6 ले लीजिए, y इज इक्वल टू c6 ई की पावर अल्फा स्केयर y। आपका u क्या होता था, इसको रेज कर देते हैं, हमने y भी फाइंड कर लिया इसके लिए और x भी। तो असल में u क्या है, u तो x मल्टीप्लाई बाय y है। व्हाट इज u, सो x इज c4 cos हाइपरबॉलिक 2 अल्फा x प्लस c5 साइन हाइपरबॉलिक 2 अल्फा x, और जो y है वो c6 ई की पावर अल्फा स्केयर y है। ओके, अब अगर मैं इस चीज़ को इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, c4 मल्टीप्लाई बाय c6, हमने पहले a1 लिया था, इस टाइम a2 ले लें, ई की पावर अल्फा स्केयर y cos हाइपरबॉलिक 2 अल्फा x। ठीक है, प्लस c5 और ये c6 से हमें b2 मिलेगा कांस्टेंट, और ई की पावर अल्फा स्केयर y साइन हाइपरबॉलिक 2 अल्फा x, और a2 is c4 c6 and b2 is c5 c6। दिस इज योर इक्वेशन। आप इस सब में से अगर वो कॉमन ले लेंगे तो फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो हमने इस केस के लिए भी अपना u निकाल दिया है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ केस नंबर 3। that is lambda is equal to alpha square। इसके अंदर आप देखेंगे, अब मेरी इक्वेशन क्या थी, x के लिए हम लिख रहे हैं पहले x डबल डैश प्लस 4 लैम्डा x इज इक्वल टू 0।
अगेन आई विल सपोज x इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स, डबल डेरिवेटिव लूंगा तो एम स्केयर ई की पावर एम एक्स प्लस 4 अल्फा स्केयर ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स कॉमन, सो एम स्केयर प्लस 4 अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है तो इसको 0 रखेंगे, तो एम स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फा स्केयर। जब मैं दोनों साइडों पे अंडर रूट लूंगा तो एम स्केयर इज इक्वल टू ठीक है, तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 अल्फा अयोटा, ये 4 अल्फा स्केयर तो 2 अल्फा आ जाएगा बाहर और माइनस 1 अंडर रूट रह जाएगा तो वो अयोटा की शक्ल में आएगा। तो आपके रूट्स क्या बनेंगे, पहले हम कांस्टेंट C6 तक डील कर चुके हैं, तो अब आपका x बनेगा, जब हमारे पास इस तरह से आ जाता है तो हम किस तरह से रूट लिखते हैं, ये होता है, इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस अयोटा बीटा, तो हम लिखते हैं ई की पावर अल्फा एक्स और कांस्टेंट हमारे पास C7 आ जाएगा, कॉस बीटा एक्स प्लस C8 साइन बीटा एक्स। जब मैं ई की पावर 0 करूँगा, अल्फा ये है तो वो 1 हो जाएगा, तो मुझे इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, C7 कॉस बीटा इज 2 अल्फा एक्स प्लस C8 साइन 2 अल्फा एक्स। अब हम y के लिए सॉल्यूशन लेट करेंगे, फाइंड करेंगे। y वाली इक्वेशन किस तरह थी, y डैश प्लस लैम्डा वाई लिख लो, m इंटू ई की पावर एम वाई प्लस लैम्डा इज अल्फा स्केयर ई की पावर एम वाई इज इक्वल टू 0। m क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी ई की पावर एम वाई कॉमन ले, m प्लस अल्फा स्केयर इज कांस्टेंट, ई की पावर एम वाई ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ये 0 के बराबर रख लें, और m प्लस अल्फा स्केयर m इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्केयर, तो आपका ये हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा स्केयर, y इज इक्वल टू ई की पावर एम वाई किया ना, तो e की पावर एम वाई, ये आपका सोल्यूशन हो गया। और साथ एक कांस्टेंट होगा, हम पहले कांस्टेंट डील कर चुके हैं C8 तक, इसका कांस्टेंट C9 कर लें आप। तो अगर अब हमारा u क्या था, x मल्टीप्लाई बाय y, x क्या था आपके पास C7 cos 2 अल्फा एक्स प्लस C8 साइन 2 अल्फा एक्स, y क्या था C9 e की पावर माइनस अल्फा स्केयर y, राइट। C7 और C9 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास A3 cos 2 अल्फा एक्स और ये e की पावर माइनस अल्फा स्केयर y भी, प्लस C8 C9 से आपके पास B3 साइन 2 अल्फा एक्स और ये e की पावर 7 माइनस अल्फा स्केयर y भी, ठीक है। A3 आया C7 मल्टीप्लाई बाय C9, B3 आया C8 मल्टीप्लाई बाय C9। आपने इस तरह से, अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोई आती है तो आप उसके 3 सॉल्यूशंस, आप उसके पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, उसमें आपके पास लैम्डा भी आएगा और लैम्डा के लिए आप 3 तरह से डील करेंगे, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर एंड लैम्डा इज इक्वल टू प्लस अल्फा स्क्वायर वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0। सो दिस वाज, और लैम्डा कहाँ से आया था, लैम्डा इज कांस्टेंट और हमने उसको ट्रीट किया था, ठीक है। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशंस। The linear second order
order partial differential equation is look like that. A is equal to partial, sorry, A is not, A is a constant, partial square y over partial x square plus b partial square y over partial सॉरी आप इसको u ट्रीट करें, पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x पार्शियल y प्लस c पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर प्लस d पार्शियल स्क्वायर d के साथ से पार्शियल स्क्वायर नहीं, a की डेरिवेटिव है, पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस e पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस एफ यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपने एक लेट सपोज कर लें कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए कांस्टेंट है, पर वो कौन सा कांस्टेंट है? जो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर के साथ है। बी कौन सा कांस्टेंट है? जो पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स वाई, पार्शियल एक्स पार्शियल वाई के साथ है। इसी तरह सी कौन सा है, डी कौन सा है, ई कौन सा है और एफ कौन सा है। ये कॉन्स्टेंट्स आपको याद रखें क्योंकि हम ए बी सी डी के साथ क्लासिफाई करेंगे इक्वेशंस को। ए बी सी डी ई एंड एफ आर रियल कॉन्स्टेंट्स इज सेड टू बी। अब इक्वेशन आपकी ये हमने क्लासिफाई करना ना, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होगी? दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थ्री थिंग्स, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक। इस चीज़ के साथ आप डील कर चुके हैं सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में, चैप्टर 6 में। और इलिप्टिक, यू नो बेटर अबाउट दीज थिंग्स टर्म्स। अच्छा, हाइपरबोलिक कब होगी? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। पैराबोलिक कब होगी? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इलिप्टिक कब होगी? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो अब ये बातें याद रखिएगा कि, और याद रखिएगा कि बी कौन सा कांस्टेंट है, ए कौन सा है और सी कौन सा है। ठीक है, किसके साथ वाले हैं। और हाई या अगर ग्रेटर देन 0 ये चीज़ निकलेगी तो वो हाइपरबोलिक, इज इक्वल टू 0 पैराबोलिक और लेस देन 0 एलिप्टिक। अब एक एग्जांपल हम कर लेते हैं इसी लिहाज से कि हमने क्लासिफाई करना है। Example 2, classifying linear second order differential equations. Classify the following equations. Part A, three into partial square u or partial x square is equal to partial u by partial y, right? ये आपका था 3 इंटू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, यानी कि इसके साथ कांस्टेंट है। इस तरह से आप कर लें 3 इंटू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। ठीक है, जो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर के साथ था कांस्टेंट उसे क्या कहते थे? ए। तो ए हो गया 3 के बराबर, और जो पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई के साथ था उसे कहते हैं ई, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास तो हमने क्या फाइंड करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास तो बी है ही नहीं, तो आप बी को 0 लेट कर लेंगे क्योंकि बी का कोई है ही नहीं। यानी कि मैं अगर ऐसे लिख दूं, बी किसके साथ था कांस्टेंट? पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स वाई। तो मैं ऐसे लिख दूं 0 इंटू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई। सो इट्स मीन 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, सो दैट इज 0।
और -4, ए क्या है 3 और सी फिर क्या है 0, 0 का स्क्वायर -0 दैट इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी पैराबोलिक। अब इसी तरह एक ही क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे देता हूँ, इसी का पार्ट है। पार्ट नंबर बी, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। फिर ये आप इस तरह से लिखते हैं पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और फिर आपने ये निकाल देना। मैं इसका चलिए आपको जवाब बता देता हूँ, दैट इज हाइपरबोलिक, और ये प्रूव आपने करना है, राइट। सी पार्ट भी लिख लें इसका, ये भी आप खुद करेंगे। पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मैं आपको जवाब बता देता हूँ, ये इलिप्टिक होगी। यू हैव टू प्रूव इट। अब हम डील करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस। So let's suppose आपका फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड कर रहा है, ये पॉइंट है इस लाइन पे L। यहाँ पे भी ये U जो है 0 है एट x इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी ये U जो है 0 के बराबर है एट x इज इक्वल टू L, राइट। ये आपके फंक्शन की कर्व है, यहाँ भी ये 0 है, यहाँ भी ये 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू L है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अच्छा, आप कैसे लिखते हैं u ऑफ x, और आप फर्स्ट कर लें हम एक डायमेंशन में चल रहे हैं ना, 1 डायमेंशन, अदर डायमेंशन विल बी t, ठीक है ना। यानी कि 1 डायमेंशन है, x कोऑर्डिनेट है सिर्फ हमारा, x की वैल्यूज आएंगी, तो u ऑफ x t हम डील कर रहे हैं। तो पहले आपके पास है u ऑफ 0 और t एज इट इज, तो ये भी आपका 0 के बराबर, और u ऑफ x क्या है L, और ये t तब भी ये 0 के बराबर। टाइम डायमेंशन है और एक दूसरी है 1 डायमेंशन, यानी कि सिर्फ x इज द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स वेयर t इज ग्रेटर देन 0। सो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स एक लिखते हैं, फिर उसको देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर वेयर x is greater than 0 and less than L and t is greater than 0। यही हमारी कंडीशन इधर है, ठीक है। सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशंस होती हैं और एक इनिशियल कंडीशंस होती हैं। अगर बाउंड्री कंडीशन ली जाए बाउंड्री कंडीशन u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0 और u ऑफ lt इज इक्वल टू 0 और t इज ग्रेटर देन 0, ये हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई हैं।
एक्स 0 और एक्स एल है, ठीक है, एक्स इज 0 है और एक्स इज एल। और फंक्शन आपका, ये फंक्शन की कर्व है तो फंक्शन आपका यहाँ भी 0 है जब एक्स 0 है, और जब एक्स एल है तब भी आपका फंक्शन 0। इनिशियल कंडीशंस अब लगाएंगे। इनिशियल कंडीशंस में अब दूसरा टी की बारी आ जाएगी कि u ऑफ x को एज इट इज टी 0 है तो तब क्या होगा। लेट्स नो वो f ऑफ x है, और पार्शियल u बाय पार्शियल t जब t 0 है तो वो g ऑफ x है एक फंक्शन। और अब यहाँ पे हम x की लिमिट्स देंगे, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन l। अब आप करेंगे सॉल्व इस इक्वेशन को, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर। ये याद रखिए सवाल। और x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अल्फा, y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, ठीक है। अब अगर इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाई जाए तो पार्शियल u बाय पार्शियल x को देखेंगे आप एट x इज इक्वल टू 0, फिर आप पार्शियल u बाय पार्शियल x को देखेंगे x इज इक्वल टू अल्फा पर, और y के लिए आप रख देंगे y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। इसी तरह आप u को, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y ना, हमने अब यहाँ पे x के साथ उसकी बाउंड्री कंडीशंस देखी हैं, और अब हम y के साथ देखेंगे। u ऑफ x और 0 इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ x इंटू b इज इक्वल टू f ऑफ x, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, ठीक है। तो बात असल सिर्फ ये है कि हम इनिशियल कंडीशंस भी लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशंस भी लगाते हैं। इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस में हम इस फर्स्ट वैल्यू को ट्रीट करते हैं, इनिशियल में हम दूसरी वैल्यू को ट्रीट कर रहे थे। हमें बाउंड्री कंडीशंस होती हैं कि एंड लाइन पॉइंट्स पर उसका बिहेवियर क्या है, और इनिशियल कंडीशन उसके दूसरे पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी आपको बताया गया होता है आपके आंसर का, तो कोई आंसर वैल्यू गिवन होती है। खैर हम जाएंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हीट इक्वेशन को। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हम किस तरह से बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करते हैं। अभी इसे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना था। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।